नमस्कार। जो कहेंगे सच कहेंगे। मैं हूं सचिन। राहुल गांधी के खिलाफ सत्ता पक्ष विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं भेजेगा, यह बात बिल्कुल क्लियर है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि मैंने कांग्रेस के नेताओं से कहा है कि राहुल गांधी को वो समझाएं, नहीं तो हम विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि सरकार राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा कोई कदम फिलहाल उठाने नहीं जा रही है। हमारा मुद्दा यह है कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोला, क्यों राहुल नियम से हटकर अपनी बात रखते हैं। इस बुलेटिन में हम आपको यह नहीं बताने वाले हैं कि राहुल ने ऐसा क्यों बोला। हम आज ये बताने वाले हैं कि संसद के अंदर और संसद के बाहर कैसे नेता नियमों का उल्लंघन करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, जबकि होनी चाहिए। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। So you are telling us that the world is a place where geopolitical conflict is intensifying. You're telling us energy and finance being weaponized, and then you're having it done to you. You're having it done to our farmers. You're having it done to our youngsters. You're handing our data over. How can you even make these statements? How can you even come to this house and talk this type of nonsense? Are you not ashamed of yourselves? Are you not ashamed of giving? You're saying shameful. You're saying nonsense. My request is, please use the word whatever you choose to use, but don't make it abusive. It doesn't. That's not abusive, my friend. Nonsense. जो nonsense आपने यूज किया वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। But ashamed is not an abuse. नहीं। There's nothing. In saying, "Are you not ashamed?" There is no abuse. I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Ambani, because that is the central part of the budget. वो भी इस हाउस के कोई स्वरूप नहीं जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, कैसे संभाल देंगे? Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him Mr. Chair, to Epstein. Mr. He is the leader of opposition. All the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will authenticate right now. Because the minister said that I should authenticate. Now I have the papers to authenticate. I have it here. 1 second, please. I have the paper. Now I said to you, 1 second, I have the documents here. I said to you that I will authenticate, and I will also I will authenticate right now, and I will put it there on the table. But you're not allowing me to do it. Anyway, I understand that. राहुल ने ये बात कल सदन के अंदर बोली जो नहीं बोलनी चाहिए थी। इसके बाद किरण रिजिजू ने जो कहा वो सुनिए।
We are going to file a notice, privilege notice, against Sri Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement. There is a very clear-cut rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha and Rajya Sabha. When a member intends to make serious charges of allegation against another member, then you have to make a notice and also substantiate the allegation. So I have on the floor of the House requested Sri Rahul Gandhi ji to make necessary authentication of the those points he has made. Secondly, he took the name of the senior minister Hardeep Singh Puri. He has made a serious allegation against Hardeep Singh Puri without giving any notice. लेकिन आज किरेन रिजिजू ने जो कहा वो भी सुनिए। ऐसा है, वो कांग्रेस के कई एमपीज को मैंने बोला है कि आप लोग राहुल गांधी जी को थोड़ा समझाइए कि रूल से बाहर बोलने पर प्रिविलेज नोटिस होते हैं और आप कोई भी रूल ब्रेक करेंगे तो आपके खिलाफ कोई भी नोटिस अलग अलग नियम में उठाया जा सकता है। तो अभी भी मैंने कुछ कांग्रेस सांसदों को बताया है कि आप लोग राहुल गांधी जी को समझा दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी जी को शायद नियम नहीं पता होंगे। हमारी फूड सिक्योरिटी। वहीं राहुल गांधी अब भी अपने बयान पर अड़िग हैं। अपने नए बयान में उन्होंने कहा, मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। इसके साथ फैसला लिया गया कि राहुल गांधी के भाषण के वो हिस्से हटाए जाएंगे जिन्हें वो प्रमाणित नहीं कर पाए। साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि हरदीप पुरी संसद में राहुल के आरोपों का जवाब देंगे। सब मामला शांत होता दिखा, तभी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में खड़े होकर राहुल गांधी पर देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने और संवेदनशील मुद्दों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि राहुल गांधी सोरोस फाउंडेशन, USAID और फोर्ड फाउंडेशन जैसी संगठनों के संपर्क में रहते हैं। इस पर हंगामा हुआ और सदन कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। अब ये बात वो निशिकांत दुबे कह रहे हैं जिन्होंने इससे पहले सदन में क्या कहा था, वो सुनिए। छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये बोलने दिया जाए सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये इंदिरा जी का किताब है सर, ये इंदिरा जी का किताब है जिसने कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी
तिवारी के साथ किस तरह के संबंध थे और डिफेंस डीलर के क्या संबंध थे। जनरल थोरट की किताब है कि नेहरू ने चीन को कैसे दे दिया। ये नेहरू की किताब है कि किस तरह नयनतारा सहगल से लेके एक गर्लफ्रेंड के साथ उनके संबंध रहे, जो कि बैन कर दी। जिन किताबों का जिक्र निशिकांत दुबे कर रहे हैं, पता नहीं इसमें से कितनी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं और जो बोल रहे हैं वो कहां पढ़े। एक बार ये लाइन फिर से सुनिए। ये नेहरू की किताब है कि किस तरह नयनतारा सहगल से लेके एक गर्लफ्रेंड के साथ उनके संबंध रहे, जो कि बैन कर दी। वाह निशिकांत जी, नयनतारा सहगल नेहरू की गर्लफ्रेंड थी। कहां से पढ़कर आते हैं ये लोग? इन्हीं के सहयोगी हैं ये गिरिराज सिंह। 2 दिन पहले 3-4 तस्वीरें लेकर सदन के बाहर आए थे। इसमें भी नयनतारा सहगल की ये तस्वीर थी। गिरिराज सिंह की इन तस्वीरों का भांडाफोड़ हमने कर दिया था। अब निशिकांत जी का करना बाकी है। निशिकांत जी, ये हैं नयनतारा सहगल। एक बार फिर इस फोटो के नीचे की लाइन कान लगाकर सुन लीजिए। 1955 में विजय लक्ष्मी पंडित यूके की राजदूत थी। जब नेहरू लंदन की आधिकारिक यात्रा पर गए थे तो एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए नयनतारा सहगल अपनी मां विजया लक्ष्मी पंडित के साथ मौजूद थी। विजया लक्ष्मी पंडित नेहरू की बहन थी और नयनतारा सहगल उनकी भांजी। लेकिन गिरिराज सिंह और निशिकांत दुबे को नयनतारा सहगल नेहरू की गर्लफ्रेंड दिखती हैं। मानसिक रूप से दिवालियापन का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। इसलिए तो कह रहे हैं कि जिन किताबों को निशिकांत दुबे लोकसभा में उठा कर दिखा रहे हैं, इसमें से एक भी किताब को पढ़ना तो दूर, अंदर का पन्ना भी कभी जिंदगी में नहीं पलटे होंगे। अगर पलटे होते तो फिर नयनतारा सहगल नेहरू की भांजी दिखती, ना कि गर्लफ्रेंड। अब सवाल उठता है कि क्या किसी ने निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात की? क्या किसी बड़े नेता ने खुलकर कहा कि इन दोनों ने देश की गरिमा को ठेस पहुंचाई है? जवाब है नहीं। तो ये है इनका चाल चरित्र और चेहरा। गिरिराज सिंह AI जनरेटेड फोटो लेकर घूमते रहते हैं। इसका पोस्टमार्टम हमने 2 दिन पहले इसी बुलेटिन में कर दिया था। इन्हीं गिरिराज सिंह ने आज राहुल के बारे में क्या कहा वो सुन लीजिए। देखिए, मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी, आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा। आप देश में किसानों में भरम फैलाना चाहते हो, आप देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हो और झूठ भी बोलते हो उस सत्य के मंदिर में जाकर के लोकसभा में। राहुल गांधी को लुच्चा, थोड़ी देर के लिए मीडिया वाले भी चकरा गए। ये क्या बोल रहे हैं? फिर भी मन नहीं माना तो एक ने सवाल फिर पूछा। जवाब सुनिए। बोल रहा हूँ, लुच्चा जो भारत के लोग आपको पहचान चुके हैं, आप सत्ता में आने वाले नहीं, इसीलिए ऐसी गतिविधि। सर, आप नेता प्रतिपक्ष को लुच्चा बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। लुच्चा जो रहेगा उसको लुच्चा ही तो बोलूंगा। एक वीडियो आया है, सुन लिया? लुच्चा सुनकर हम भी गच्चा खा गए। अरे, नेता प्रतिपक्ष को कोई कैसे बोल सकता है? लेकिन बोल सकता है। जब सरेंडर को सलेंडर और सलेंडर बोल सकते हैं तो फिर कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा है, अंग्रेज के बाहों में सलेंडर किया। ये नेहरू ने सलेंडर कर दिया अपने आप को। अब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ये हम आप पर छोड़ देते हैं। गिरिराज सिंह और निशिकांत दुबे के लिए तुलसीदास की एक चौपाई है, समरथ को नहीं दोष को साई। आप देखते जाइए देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में किस तरह सत्ता पक्ष की ओर से एक एक कर कई सांसद सदन की मर्यादा को तार तार करते हैं, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती ही नहीं। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते। 2 साल पहले लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली को न सिर्फ गंदी गंदी गालियां दी थी, बल्कि उनके खिलाफ ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जिसे हम बिना बीप किए आपको सुना भी नहीं सकते। सिरे ले रहे हैं, प्लीज कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं।
जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। डैनिशली जी प्लीज इसकी बात करते रहना जी, बाहर देखो। रमेश भिथुड़ी के इस तरह के बयान देने के बाद क्या उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई गई? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि क्या संसद का सारा नियम विपक्ष पर ही लागू होता है? आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं दूसरी स्टोरी का। ट्रोल आर्मी का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आपको बता देते हैं। यह सोशल मीडिया का इजाद किया हुआ शब्द है, ट्रोल आर्मी। ट्रोल आर्मी वो होते हैं जो सोशल मीडिया पर किसी को बदनाम करने की सुपारी लेते हैं। इनके कंधे पर किसी ताकतवर शख्स या राजनीतिक पार्टी का हाथ होता है। अब ये कैसे काम करते हैं, इसका खुलासा आज हुआ। मामला है दरअसल महुआ मोइत्रा का। महुआ पहले से सत्ता पक्ष की आंखों की किरकिरी है और एक बार उन्हें संसद से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा चुका है। आजकल महुआ खुलकर एप्स्टीन फाइल पर बोल रही हैं। अब जब महुआ एप्स्टीन फाइल पर बोलेंगी तो ट्रोल आर्मी तो एक्टिव हो जाएगी ना। ट्रोल आर्मी में से एक के खिलाफ महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के नादिया में केस दर्ज कराया। आरोप लगाया कि यह शख्स एक्स पर उनके तथाकथित गोपनीय चैट को वायरल कर रहा है। नादिया के सीजीएम ने इस शख्स के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसके बाद नादिया पुलिस गैर जमानती वारंट लेकर नोएडा फेज 2 थाना पहुंची। लोकल पुलिस को साथ लिया और नोएडा सेक्टर 110 के लोटस पनाश अपार्टमेंट पहुंची। इस समय जिस सोसाइटी में मैं हूं वो है लोटस पिनाची सोसाइटी। यहीं पर सुजीत दासगुप्ता रहते हैं और इसी जगह पर पश्चिम बंगाल पुलिस पहुंची नोएडा पुलिस के साथ। और पश्चिम बंगाल पुलिस का सीधे तौर पर आरोप है कि जब वो पहुंची तब तक जो है वो सीधे तौर पर सुजीत दासगुप्ता को फरार करने की कोशिश की गई और उनको फरार कर दिया गया। हम लोग गिरफ्तार नहीं कर पाए। हमको 2 घंटे से ज्यादा जो है बैठाया गया। अगर नोएडा पुलिस चाहती तो शायद सुजीत दासगुप्ता गिरफ्तार हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये लगातार पश्चिम बंगाल पुलिस ने आरोप भी लगाए और इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने भी इस पूरे मामले पर आरोप लगाए। लेकिन नोएडा पुलिस की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि ऐसा नहीं है। हमने सीधे तौर पर समर्थन किया। हमने 1.5 से 2 घंटे उनको नहीं बिठाया। जो भी आवश्यक कार्रवाई थी हमने वो की। अब फिलहाल सुजीत दासगुप्ता फिलहाल यहां से फरार जरूर हैं। परिवार में कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन स्पष्ट बात है कि अब ये पूरा मामला राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज 24 संवाददाता वरुण सिन्हा ने यह पूरी जानकारी नोएडा पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति पढ़कर दी। यहां तक आप समझ गए होंगे कि नोएडा पुलिस पश्चिम बंगाल पुलिस को लेकर इस लोटस पनाश अपार्टमेंट पहुंची तो वो शख्स वहां नहीं था। परिवार के दूसरे लोग मौजूद थे, लेकिन महुआ मोइत्रा ने एक के बाद एक 3 वीडियो एक्स पर पोस्ट किए, जिससे साफ है कि जब पश्चिम बंगाल पुलिस और नोएडा पुलिस पहुंची तो यह शख्स अपने फ्लैट में मौजूद था। उसका सबूत यह। वीडियो नंबर 1। सबसे पहले इस वीडियो को स्टिल कर एक एक के बारे में समझ लीजिए ये कौन कौन है। ये बाईं तरफ बंगाल पुलिस है और टोपी में दाईं तरफ नोएडा पुलिस। पहले बंगाल पुलिस गैर जमानती वारंट के बारे में बताती है, फिर आगे क्या होता है वो समझिए। भाई साहब, ये जो है डिफेमेशन मतलब मानहानि का केस है, तो इसमें अरेस्ट कैसे हो सकता है? अगर नॉन बेलेबल होगा तो अरेस्ट होता है, चाहे वो मामला नहीं नॉन बेलेबल कैसे हो सकता है? नहीं नॉन बेलेबल कैसे हो सकता है? देखिए हुआ क्या था कि मैंने एक ट्वीट किया था, ठीक है, जो कंप्लेनेंट है उनके बारे में मैंने एक ट्वीट किया था और वो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ, ठीक है। वो मेरे ट्वीट करने पे वायरल नहीं हुआ, पहले से ही वायरल था। जो भी रहा तो मैंने ट्वीट किया, ठीक है, उसमें भी मैंने एलिजेंटली लिखा, मतलब कथित तौर पे। मैं आपकी बात को काटूंगा, एक मिनट सुन तो लीजिए। ये जो यहाँ तक पहुंचे हैं, लो ऑल ओवर इंडिया लगभग एक ही है, इनके ऊपर जो सीनियर होंगे, जज होंगे, उन्होंने ही आदेश दिया। अब इस वीडियो को यहाँ रोकते हैं और आगे क्या होने वाला है पहले आपको बता देते हैं, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। आरोपी सुजीत दास गुप्ता कहते हैं कि ऐसे केस में पश्चिम बंगाल के पुलिस इंडिया भर लेकर गई, लेकिन वहां की स्थानीय पुलिस ने उनको रोका। ये तो ऑनलाइन दिखा रहे हैं, ये तो एक फोटो दिखा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे केसेस वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से पूरे इंडिया भर में बहुत से ऐसे हुए हैं कि लोगों को लेकर
या फिर वही के जो स्थानीय जो पुलिस है उन्होंने रोका भी उनको कि आप ऐसे नहीं ले जा सकते। नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसा रूल नहीं है कि एनबीडब्ल्यू को हम रोक लें। नहीं, एनबीडब्ल्यू ये कैसे हो सकता है? अब ये तो कोर्ट बताएगा ना, कोर्ट में मिलेंगे ना, डेट को उसी की तो लेकर जाएगा। मैं अभी आपसे बात करा रहा हूँ। गौर से सुनिए तो इसके बाद नोएडा पुलिस क्या कहती। बात करने से काम चलेगा नहीं ना, हम खाली काम चाहिए। आप कपड़े पहनिए, उसके बाद में जो भी उपलब्ध पक्ष होगा आप कोर्ट में देना, क्या दिक्कत है? कोर्ट में तो वो बंगाल के कोर्ट में जाना पड़ेगा। अरे यहां तक आपने क्या समझा? नहीं समझा तो बता देते। आरोपी सुजीत दास गुप्ता बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नोएडा पुलिस कह रही है कि गैर जमानती वारंट है, जाना तो पड़ेगा। इसके बाद आरोपी सुजीत दास गुप्ता कहते हैं कि अभी फोन पर आपसे बात करा रहा हूं। तब नोएडा पुलिस साफ साफ कहती है, बात करने से काम चलेगा नहीं ना, हम खाली काम चाहिए। आप कपड़े पहनिए, उसके बाद में जो भी उपलब्ध पक्ष होगा आप कोर्ट में देना, क्या दिक्कत है? लेकिन नोएडा पुलिस को भी अंदाजा नहीं है कि आरोपी किससे बात कराने वाला है। आरोपी फटाफट फोन लगाता है और अब उसके आगे का वीडियो देखिए। हेलो हेलो, हम किसी के बारे में कुछ भी या अमित दी पुलिस आर हियर फ्रॉम वेस्ट बंगाल पुलिस accompanied by Noida police, and that tweet has been deleted also 2 days ago. भाई साहब उनको बताइए, ये बीजेपी के अमित मालवीय बोल रहे हैं। हम फेज 2 थाना फेज 2 से है सर। इसके बाद आपस में कुछ बात होती है, जिसमें आरोपी कहता है कि उसे ईमेल के जरिए एक नोटिस मिला था। इसके बाद बिना आरोपी को अपने साथ लिए नोएडा पुलिस किसी तरह बंगाल पुलिस को साथ लेकर थाने चली जाती। इसके बाद नोएडा पुलिस एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहती है, सुजीत दास गुप्ता के मुद्दे पर अब नोएडा पुलिस वर्सेस पश्चिम बंगाल पुलिस हो गया है और ऐसे में नोएडा पुलिस की तरफ से स्पष्ट तौर पर यह समझाया गया कि जैसे ही उनके पास इंफॉर्मेशन आई और ये बताया गया पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से कि उनके पास गिरफ्तारी का वारंट है सुजीत दास गुप्ता का, ऐसे में नोएडा पुलिस ने आवश्यक जो भी कार्रवाई हो सकती है वो की। साथ में टीम उनके साथ गई और जब मौके पर वो पहुंचे तो वहां पर सुजीत दास गुप्ता नहीं थे, उनकी पत्नी मौजूद थी। उनको जानकारी दी गई और बताया गया कि उनके खिलाफ वारंट है, उनके पति के खिलाफ, और कहीं ना कहीं ऐसे में जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि जो भी पश्चिम बंगाल पुलिस को हम लोग अपनी तरफ से सपोर्ट कर सकते थे, कोऑपरेशन कर सकते थे, उन तमाम रूल्स को फॉलो किया गया है। अब इसके आगे कहने के लिए कुछ नहीं, आप समझदार हैं, खुद समझ लीजिए। नहीं समझ पाए तो एक बार फिर बता देते। अभी तक आपने वीडियो में देखा कि कैसे नोएडा पुलिस पश्चिम बंगाल पुलिस को लेकर सुजीत दास गुप्ता के फ्लैट पर गई, बात की और साफ साफ कहा कि आपको तो चलना पड़ेगा, कपड़े बदलिए और साथ चलिए। तभी बीजेपी के अमित मालवीय का फोन आता है। नोएडा पुलिस को अंदाजा लग गया कि अब इसका कुछ कर नहीं सकते, इसलिए बंगाल पुलिस को बैरल लेकर थाने पहुंची और मामले को रफा दफा वहीं से कर दिया। जो नोएडा पुलिस प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहती है कि जब हम वहां गए तो सुजीत दास गुप्ता थे ही नहीं। लेकिन आप वीडियो देखकर सब कुछ समझ गए होंगे। ये एक बानगी है जो बताने के लिए काफी है कि कैसे ट्रोल आर्मी देश में काम कर रही है और कैसे किसी को भी बदनाम करने की सुपारी ले चुकी है। यह पूरा मामला 10 फरवरी का है। वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, नोएडा।